morning, students. Hope you all are fine. I got message from few students. They sent a message, ma'am, maths is very difficult. I just want to say one thing. Change the way to see the things. Things are changed. And if you think you can do, it means you can do. First of all, you have to think that you can do mathematics. Then you can do it very perfectly. Today, just you have to remember it. You are thinking math is easy. You can do it if you think it like that. Today we will discuss few examples of exercise 2.1 in the second lecture of relations and functions. Here I'll discuss few examples. First example is example number 5 in your NCERT. If capital R is a set of all real numbers, what do the Cartesian product R cross R and R cross R cross R represent? I'll discuss from today. Combined language I will use. Maybe it will be easy for you to understand. पिछले लेक्चर में जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया वहां मैंने आपको समझाया कि कैपिटल आर का मीनिंग रियल नंबर्स होता है. जब यहाँ पर कैपिटल आर यूज हो रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पर रियल नंबर की बात कर रहे हैं. R cross R means a set of those order pairs where x comma y means x belongs to capital R and y belongs to R. x और y दोनों ही रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं. यहाँ हम ऑर्डर पेयर की बात कर रहे हैं. ऑर्डर पेयर आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपने रीड की हुई है. उस 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मीनिंग होता है कि हम इस तरह की ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं जहां पर ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली. इफ आई टॉक R cross R, I think you all have studied about the volume in junior classes. वॉल्यूम में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों हम यूज करते हैं. तो यहाँ पर भी तीन ही हम जो है नंबर्स को यूज करेंगे. स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z. तीनों ही कहाँ बिलोंग करेंगे? कैपिटल R. जब भी हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर पेयर का सेट होता है. इट मींस उसको कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे तभी वो सेट की फॉर्म में लिखा हुआ दिखेगा. अदरवाइज अगर हम सिर्फ पेयर्स में x y z लिख देते हैं तो वो सेट की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू पुट all order pairs in a curly bracket. 3-dimensional geometry means what? 3 measurements are there, x, y and z. Now how to make 3 pairs, the 3 elements of a Cartesian product by multiplying p by p, p by p by p. Suppose p is 1, 2 having elements. p cross p अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपने क्या करना है कि p को p से मल्टीप्लाई करना है. तो p का पहला एलिमेंट 1 है. अगर p दूसरा एलिमेंट भी अगर मैं p का लेना चाहूंगी तो भी क्या हमारे पास वहां पर 1 है. दूसरे p में भी एलिमेंट 1, तो 1 के साथ 1 पहला ऑर्डर पेयर आ जाएगा. 1 के साथ 2 सेकंड एलिमेंट लेंगे सेकंड वाले p का, तो ये 1 2 आ जाएगा. सेकंड में 2 1 देन 2 2. 4 ऑर्डर पेयर्स यू कैन कलेक्ट in p cross p and put them in a curly bracket. You will get a set of order pairs of p cross p. Now p cross p cross p, it means what? This p cross p is again multiplied by p. Now look here, जब आप इस 1 1 को इस 1 के साथ रिलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 1 and 1 फर्स्ट ऑर्डर पेयर. Then 1 1 with 2, 1 1 and 2. Take the second order pair 1 2, take it with 1 1 2 1. Then again 1 2 2. Every order pair will go with 1 as well as with the 2. It means each order pair gives you 2 next order pairs. Triplet, you can say these are the triplets. 3 x y z are there. It means this is a triplet. You will get how many elements? 1 2 8 elements you will get. How you will get these elements? I think it is clear now to you. Now A cross B is given to you. Now you have to find out the value of set A and set B elements. अब आपको देखना है कि A cross B में कौन से एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं. तो सेट A में कौन से एलिमेंट्स आएंगे?
ए फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, तो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ एलिमेंट कहाँ से आ रहा होगा, वो सेट ए में से आ रहा होगा। तो आपने जब सेट ए के एलिमेंट्स लिखने हैं तो फर्स्ट एलिमेंट्स को चेक करके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनको सेट ए में लिखना है। बी के लिए अब सेकंड एलिमेंट को ऑब्जर्व करिए, क्योंकि बी लिखा हुआ है बाद में, ए क्रॉस बी है, तो एक्स वाई एक्स वाई, इट मींस ओनली टू एलिमेंट्स विल बी देयर इन द सेट बी. So A and B are the sets which you can get from the A cross B Cartesian product. Now in question number 7, a set A, B, C, D are given to you. You have to verify A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C. Now here you can check. Set in chapter number 1, you have studied about the intersection and union. दोनों चीजों के बारे में आपने पढ़ा है, यूनियन और इंटरसेक्शन. दीज आर द ऑपरेशंस इन सेट्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड. फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या चाहिए आपको, पहले बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट वाला पार्ट आप पहले सॉल्व करेंगे, बी और सी का इंटरसेक्शन पार्ट, यानी कि बी और सी में कुछ भी अगर कॉमन है तो आप लिखेंगे 1 2 3 4, इधर 5 6 लिखा हुआ है, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इट मींस व्हाट, एम्प्टी सेट विल बी देयर. नाउ नेक्स्ट इज ए क्रॉस. अब आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ए का बी क्रॉस सी के साथ. ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2, बी में बी इंटरसेक्शन सी में कोई एलिमेंट नहीं है. जब कोई एलिमेंट नहीं है तो 1 के साथ क्या एलिमेंट लेंगे, जब आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे कोई भी एलिमेंट नहीं ले सकते. इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सेट निकल के आएगा वो एम्प्टी सेट होगा. आई हैव रिटन हियर 5 रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्टी सेट. नाउ राइट हैंड साइड के लिए आप क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये आपको निकालना है. I think you have to put here bracket. You can put here bracket. Yes, A cross B intersection A cross C. A cross B जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑर्डर पेयर्स आएंगे जो A और B को यूज करके बनते हैं. इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल हमारे पास 8 ऑर्डर पेयर्स आने चाहिए. तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. These are the 4. Next, with 2, there are 4. It means total 8 elements will be there. Now, A cross C. A cross C में A के अंदर 2 एलिमेंट हैं, C में भी 2 एलिमेंट हैं. जब आप निकालेंगे तो 4 एलिमेंट्स आएंगे आपके पास A cross C में. अब आप चेक करिए कि A cross B और A cross C में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है. अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे आप, empty set. You can check left and right, both sides are empty sets. It means both are equal. Now come to the next exam question. Question number 8. Question number 8 में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में A is equal to 1 2 ये आपको दिया हुआ है, B is equal to एलिमेंट 3 and 4 दिया हुआ है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास A क्रॉस B में, फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B is equal to नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A and नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. तो 2 into 2 you are getting 4. नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, कि जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट हैं अगर उसको 2 की पावर में लिख दूं और उसको सॉल्व कर दूं तो क्या आ जाते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाते हैं. तो 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मुझे सबसेट निकालने हैं A क्रॉस B के. A क्रॉस B में एलिमेंट्स हैं 4, इट मींस 2 to the power 4 is equal to 16. It means number of subsets of A cross B will be equal to 16. Now come to the next one. Here in question number 10, number of elements in A cross A. A and A का क्रॉस प्रोडक्ट A के साथ ही निकालना है, और आपको टोटल बताया हुआ है कि 9 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर और 2 एलिमेंट्स उसने आपको बता दिए. तो दोनों एलिमेंट्स का यूज करके आप पहले निकालेंगे सेट A कौन सा बनेगा. अब आपको पता है कि A क्रॉस A लिखा हुआ है, जो पहला एलिमेंट है जो दूसरा एलिमेंट है, दोनों ही कहां से आए हुए हैं, A में से आए हुए हैं. तो जब आप A के एलिमेंट्स दिखेंगे तो आप दोनों को चेक करेंगे, पहला एलिमेंट भी और दूसरा एलिमेंट भी. -1, 0, 0 इज रिपीटेड एंड 1, तो -1 0 और 1 आप लिखेंगे सेट A में. Now you have to write down number of elements in order pair of A cross A. आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इन 2 के अलावा है, मैंने यहाँ पे आप अंडरलाइन किए हुए हैं. इन 2 के अलावा जो भी ऑर्डर पेयर बनेंगे हमारे पास वो आपको अलग से निकाल के दिखाने हैं कि ये ऑर्डर पेयर्स हमारे पास बचे हुए जो रह गए थे हमने निकाले हैं. तो ऑर्डर पेयर कैसे निकाले हैं, -1 का -1 के साथ, -1 का 0 के साथ, -1 का 1 के साथ. हर एक एलिमेंट के 3 ऑर्डर पेयर बनेंगे. 3 एलिमेंट्स है तो कितने एलिमेंट्स बन जाएंगे यहाँ पर, 9 ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे आपके. तो आपने आंसर में क्या लिखना है
A क्रॉस A के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में ये -1 -1 -1 1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 and 1 1. Okay, I think you can do now exercise 2.1. Have a knowledgeable day. Thank you very much.